Good evening. You are welcome to the channel Enrich and Enlighten. Today is Christmas Day, so very happy Merry Christmas to all of you. I shall tell you a brief story of what happened yesterday when I decided that I should start a new channel and talk about something. So what that something could be, how to fish on that something. And therefore, what I decided was that, all right, let me start with some new book. I shall discuss a new book, talk to my viewers, and let us find out something which relates to English. क्या हुआ कल? चूंकि जैसा आप जानते हैं कि हमने ये कोशिश करी कि हम एक नई बात नए तरीके से शुरू करेंगे, तो हम इस खोज में थे कि हमारे पास कोई किताब आ जाए, पुस्तक उर्दू हिंदी, राइट, आ जाए और उससे हम कोई नई बात शुरू करें. एंड देयरफॉर व्हाट आई वाज थिंकिंग ऑफ that what that book could be. Now you can see some almirah behind, all right? And as soon as I started looking into it, the first book which came to my hand, which was actually put in the front, was the Bible itself. So what a coincidence. 25th December, and then I had the Bible in my shelf. The Bible which I have is this one, Good News Bible, today's English version. Good News Bible, today's English version. And this Bible I got from Mary Victor. This is Mary Victor in 2004. Somewhere, I suppose I got it in Italy. It was probably Port of Ravenna. And, or if I may be wrong, then probably it must have been delivered to me in South Africa, Cape Town. Either of the two, I'm not sure. So as soon as I laid my hands over this particular book, I thought, okay, let me see. For all these years, from 2004 to 2022, and that is December ending, and coming 2023, I probably ever had just flipped over the pages and would not have touched in detail anything into it. But I thought, let me find something pertinent to my video. हमने कोशिश करी कि हमारे वीडियो से रिलेटेड कुछ ऐसा जरूरी मिले जिसमें हम कुछ इंग्लिश भी ढूंढ सके और कुछ आम बात भी समझ सके. And therefore, when I was flipping through the pages, in Old Testament, you must be knowing Bible has a Old Testament and the New Testament. So in Old Testament, there is a book called the Book of Proverbs. The Book of Proverbs. Therefore, before I start on to this word, Proverbs, which actually relates to English, I think I should talk something upon a general idea of proverb and Bible. I looked through the dictionary or looked through other sources, and what I got was some information, and the information says that the original was the Hebrew Bible. Maybe. So from Hebrew Bible, and Hebrew Bible is basically known as Tanakh.
और उसका दूसरा नाम है मीक्रा। तानाक और मीक्रा। जब भी आप तानाक या मीक्रा सुने, आप समझ जाएं कि बाइबल के ओल्डेस्ट वर्जन हिब्रू बाइबल की बात हो रही है। और उस हिब्रू बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट का पार्ट है। और उस ओल्ड टेस्टामेंट में है क्या? उस ओल्ड टेस्टामेंट एक तरह का कंपाइलेशन है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इट्स एन एंथोलॉजी। एंथोलॉजी मतलब ANTHOLOGY, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब है एक कलेक्शन विद रिस्पेक्ट टू समथिंग पर्टिकुलर, और उनको एक साथ हम कंपाइल कर दें। जो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट कर रहे हो, उसको हम एंथोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो व्हाट दिस ओल्ड टेस्टामेंट इज, इट्स एन एंथोलॉजी। और किस चीज की एंथोलॉजी है? उसके अंदर 24 बुक्स। इनिशियली हिब्रू बाइबल में इट वॉज अ कंपाइलेशन ऑफ 24 बुक्स, एंड 24 बुक्स वर रिटन बाय वेरियस ऑथर्स, नोन एंड अननोन। नोन एंड अननोन मैंने क्यों कहा? क्योंकि बहुत सारे लोगों का पता है कि फला किंग के टाइम ये लिखा गया, फला किंग के टाइम ये बुक लिखी गई, और ऐसे ही बहुत सारी बुक्स, और उन हर एक बुक के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स। तो उन्होंने उसको कंपाइल किया, और कंपाइल करके जो ओरिजिनल बना, दैट वाज द ओल्ड टेस्टामेंट, हिब्रू बाइबल, तानाक और मीक्रा। और यहां से अपनी बात शुरू होती है। फिर क्या हुआ? ग्रीक ने उसको ट्रांसलेट किया। जो ओरिजिनल एग्जिस्ट किया, दैट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ लिटरेचर ऑन वन हैंड, ऑन द अदर हैंड दैट हैज बिकम पार्ट ऑफ रिलीजन, ऑन द अदर हैंड दैट हैज बिकम पार्ट ऑफ फिलॉसफी, on the other hand it has also become part of politics. A lot of things come up when we go through some particular literature. तो बहुत सारी फील्ड्स के अंदर ये नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। और फिर जब ट्रांसलेशन हुआ, तो हिब्रू बाइबल का ट्रांसलेशन ग्रीक ने किया, और ग्रीक ने जब उसका ट्रांसलेशन किया, तो उस ग्रीक बाइबल का नाम हुआ सप्तुअजिंट। Septuagint. It is SEPTUAGINT, something related to 70. Septua, 70. 70. Septuagint. और उसी बाइबल का जब लैटिन में ट्रांसलेशन हुआ, रोमन्स ने ट्रांसलेशन किया, लैटिन में ट्रांसलेशन हुआ, और उसका नाम हुआ वल्गट। वल्गट, VULGATE। GATE को वल्गेट नहीं पढ़ेंगे, वल्गट, या फिर वल्गेट। वल्गेट, वल्गेट नहीं, गेट दरवाजा वाला गेट नहीं, गेट, वल्गेट। ऑलराइट, सो दैट वाज इन लैटिन आल्सो कॉल्ड एज बिब्लिया वल्गेटा और बिब्लिया वल्गाटा। सो दैट इज वल्गेट। और इन दोनों ट्रांसलेशंस में जो बुक एक पार्ट बनती थी, 24 बुक्स में से एक बुक बनती थी, दैट वाज द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स। तो क्या हुआ? हम ऐसे पहुंचे बुक ऑफ प्रोवर्ब्स पे। ये छोटी सी स्टोरी है। और बुक ऑफ प्रोवर्ब्स क्या है? इट इज द थर्ड सेक्शन ऑफ हिब्रू बाइबल एंड इज अ बुक इन ओल्ड टेस्टामेंट। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज, हमने समझ लिया कि ये तो ओल्ड टेस्टामेंट तो खुद एक एंथोलॉजी है, पर इसके साथ एक मजे की बात यह है कि ये बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, इसके अंदर बहुत सारे प्रोवर्ब्स का कलेक्शन है जो खुद में एक एंथोलॉजी है, बिकॉज वो किसी एक ने नहीं लिखे हैं, और वो कलेक्शन है ओवर अ मिलेनिया। दैट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस प्रोवर्ब्स रिटन बाय पीपल नोन एंड अननोन ओवर अ मिलेनिया। मिलेनिया मतलब 1000 साल, या मिलेनिया प्लूरल, मिलेनियम 1000, मिलेनिया हजारों साल। ऑलराइट, दैट्स अ सिंगुलर एंड प्लूरल। सो ओवर मिलेनिया, और उसका कलेक्शन, और वो बनता है बुक ऑफ प्रोवर्ब्स। और इसके अंदर है क्या? इट हैज शॉर्ट एक्सप्रेशंस ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंसेस, और इसीलिए वो इसको प्रोवर्ब्स की तरह से कह रहे हैं। लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं,
जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, और उसमें जो मूल बात, जो गूढ़ बात, जो ऐसी बात जो हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है, बेहतर बना सकती है, उसको थोड़े शब्दों में कहा गया है. एंड देयरफॉर इट्स अ शॉर्ट एक्सप्रेशंस ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस. कैसी चीजें हैं? बिब्लिकल विजडम है. बिब्लिकल विजडम का मतलब यह हुआ कि बाइबल से रिलेटेड विजडम की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, समझदारी की बातें हैं. इसको आप ऐसे समझें जैसे बुद्धिस्ट फिलॉसफी में उसको कहते हैं प्रज्ञावान बातें, प्रज्ञावान श्लोक, प्रज्ञावान गाथा. बुद्धिस्ट लिटरेचर में श्लोक नहीं है, संस्कृत लिटरेचर में श्लोक है. तो वहां पे गाथाएं हैं और वो प्रज्ञा की बात कर रही हैं, विजडम की बात कर रही हैं, समझदारी की बात कर रही हैं. और इन लाइफ वैल्यूज हैं, मोरल बिहेवियर है, गुड कंडक्ट है. पर इसमें एक खास बात है. एंड व्हाट दैट पेक्यूलियर थिंग इज दैट ये जितना भी विजडम है दैट रोटेट्स ऑल अराउंड गॉड. गॉड को ध्यान में रख करके, ईश्वर को ध्यान में रख करके ये सारी बातें कही गई. एंड they relate to God, they relate to the fear of God, they relate to sin, they relate to wisdom, and therefore they relate to life. हम इसी बुक की बात कर रहे हैं और इस बुक में we have the book of Proverbs. और हम ये देख रहे हैं कि it is titled as advice to young people, wisdom, goals, rewards of wisdom, again advice to young people, benefits of wisdom, warning against adultery, immoral women, and so on and so forth. इस तरह से when I went through this particular section of Bible, I got something on or related to English, and that is Proverbs. So let us discuss after such a detailed story about what are Proverbs. You must have heard about something which people tend to or end up saying, and that is like something being repeated by many other people from time to time. Instead of saying a lot of things, what people do is they just repeat those lines. And since the people are aware, they get to know what the other person intends to say. क्या हुआ? जिस भाषा को आप जानते हो, उसी भाषा में जब आप किसी बात को कर रहे हैं, तो कोई किसी ऐसी बात को थोड़े शब्दों में कहता है जो कई सारे लोग उसी बात को उन्हीं शब्दों में दोहरा चुके हैं. मतलब एक स्टैंडर्ड है, वो सेंटेंस एक स्टैंडर्ड है और उस स्टैंडर्ड सेंटेंस को इस तरह से यूज किया जाता है कि हमें बहुत सारी बात ना कहनी पड़े और थोड़े शब्दों में हम वो बात कह पाए. अब आपके मन में आता होगा तो फिर इडियम क्या चीज है, प्रोवर्ब्स तो फिर इडियम क्या चीज है. तो ग्रेजुअली वी शैल टॉक अबाउट प्रोवर्ब्स एंड इडियम. I have made certain notes about it, and let us deliberate on understanding of proverbs, and gradually after that we will come on to idioms. So what are proverbs? All those students जो हिंदी भाषी हैं और जो हिंदी पढ़ रहे हैं, उन्होंने बचपन में लोकोक्ति पढ़ी होगी और वो लोकोक्ति ही अंग्रेजी में प्रवर्ब कहलाती है. जैसे प्रवर्ब है वैसे ही हिंदी में लोकोक्ति है. फॉर एग्जाम्पल, बिफोर आई शेल स्टार्ट ओवर दिस थिंग, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, you must have read innumerable times like the early bird catches the worm. The early bird catches the worm. Do anybody need to explain somebody that what the meaning of the sentence is, if at all you want to explain the meaning? क्या कह रहे हैं? जो चिड़िया भोरहारे या सुबह सवेरे उड़ती है वो कीड़ा पा जाती है. कीड़ा पाना मतलब चिड़िया कीड़ा खा रही है.
तो वो अपना खाना पा जाती है, भोजन पा जाती है। इसका मतलब जिस उद्देश्य से निकली है वो उद्देश्य पूरा होता है। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। ये तो इसका लिटरल मीनिंग हुआ। लिटरल मीनिंग का मतलब होता है LITERAL, लिटरल। लिटरल मीनिंग का मतलब हुआ जो शाब्दिक अर्थ है, जो सीधा सीधा अर्थ है। लेकिन अल्टीमेटली जब आपसे ये कहना चाह रहा है कोई, तो कहना क्या चाह रहा है? हिंदी पट्टी के बच्चे, हिंदी पट्टी के लोग ये बात बहुत बेहतरीन तरह से समझते हैं। अगर इसी बात को इस तरह से कहा जाए कि समय चूकी पुनि का पछताने, का बरसा जब कृषि सुखाने। आप पहला लाइन देखिए, समय चूकी पुनि का पछताने। क्या कह रहा है? समय गुजर जाने के बाद पछतावा करने का क्या? अर्थात समय से काम कर लो, अर्थात आप इनिशिएट कर लीजिए अपनी चीज, अर्थात आप देर मत करिए। मूव अर्ली, प्री प्लान, टेक एन इनिशिएटिव, कम ऑन टू इट, गेट ऑन टू द टास्क। एंड दैट इज वॉट these two proverbs, English and Hindi, are saying to that particular thing, that you have to be an early bird if you want to achieve. And therefore, after understanding this particular thing, we got an idea. The first and the foremost and the basic thing is that this is a proverb is expressed in a very short and terse way, which means something is said but something else is meant. कहा कुछ जा रहा है और उसका अर्थ कुछ और हो रहा है। थोड़े शब्दों में कही गई है, बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ी है। शॉर्ट एंड इट इज पिथी। पिथी का मतलब हुआ कोई चीज बहुत सॉलिड है, कोई चीज बहुत मूल है, कोई चीज बहुत स्पेसिफिक है। आपको बहुत ज्यादा लाग लपेट करने की जरूरत नहीं है, उतनी बात से ही सारी बात समझ में आ जाए। ऐसे भाव के लिए जो वर्ड है दैट इज पिथी, PITHY, पिथी। तो हमने ये दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक समझी, शॉर्ट है और पिथी है। फिर हम देख रहे हैं कि इसमें बात कैसी कही जा रही है। वो बात जो विजडम से भरी है, जो समझदारी से भरी है, वो बात जो बहुत एक्सपीरियंस के बाद आती है। एक ये इंपॉर्टेंट थिंग है। जनरल ट्रूथ्स होते हैं और ऐसी चीजें जो किसी को एडवाइस करने के काम आती हैं। ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है एडवाइस करने के लिए, विजडम से भरी हुई और जनरल ट्रूथ की बात। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट प्रोवर्ब्स है कि इट इज अ फीचर ऑफ कॉमन डे टू डे लैंग्वेज। इसका मतलब यह हुआ किसी दूसरी भाषा का प्रवर्ब, किसी दूसरी भाषा की लोकोक्ति आपकी भाषा में एप्लीकेबल शायद ना हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसका भाव बदल जाए, हो सकता है आप उसके शब्दों से वाकिफ ही ना हो या उसके भाव से वाकिफ ना हो। अगर भाषा से वाकिफ ही नहीं है तो आप अपनी भाषा में इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ये उसी भाषा में यूज करी जाती है। The next thing is the speaker and the learner both are aware of the language in which it is said. और एक चीज इंपॉर्टेंट आप देखिए, कहा कुछ जा रहा है और उसका मतलब कुछ और निकल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज मेटाफोरिकल। दो डिफरेंट चीजों के बीच में कंपैरिजन है और कहा कुछ जा रहा है, अर्थ कुछ और निकल रहा है। तो इट इज मेटाफोरिकल इन नेचर, मेटाफोरिकल है। Another important thing is it is complete in itself. मतलब यह हुआ कि आपको कुछ अलग से समझाने की जरूरत नहीं है, अपने आप में पूर्ण है। ये सारी बातें कही गई और किसी व्यक्ति ने सारी बातों का सार इतनी बात से कह दिया कि भैया समय चूकी पुनि का पछताने। अब उसको समझ में आ गया कि क्या उसने गलती करी, क्या उससे कमी हुई, क्या उसको करना चाहिए था और हम अब वो किस स्थिति में है। कुछ नहीं ज्यादा कहना पड़ा, सिर्फ इतना कहना पड़ा, एन अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। बात खत्म। किसी ने बहुत सारी बातें कही और किसी ने चंद शब्दों में इतनी सी बात कह दी। और इसीलिए इट बिकम्स इजी टू रिमेंबर एंड इट बिकम्स इजी टू पास ऑन टू वेरियस जनरेशंस एंड देयरफॉर दीज बिकम इटर्नल।
तो ऐसा ही प्रोवर्ब्स, बट प्रोवर्बियल फॉर्म्स में नहीं है, बट द चैप्टर, नेम ऑफ द चैप्टर इन द बाइबल, और आई मस्ट नॉट से चैप्टर, द बुक, द नेम ऑफ द बुक इन द बाइबल इज द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स। अब बात आते हैं ईडियम पर। तो फिर ये ईडियम क्या चीज हुई? ईडियम्स कैसे कैसे यूज होते हैं? क्या वो छोटे छोटे टर्म्स में नहीं है? हैं। तो फिर दोनों में फर्क क्या हुआ? कई बार हमें ये समझने में दिक्कत होती है कि भाई ईडियम और फ्रेज में फर्क क्या है। तो कुछ सामान्य चीजें हैं जो दोनों में समान हैं। जैसे वो शॉर्ट है, हां ये भी शॉर्ट है, थोड़े में कहा जाता है शॉर्ट शॉर्ट। वो गूढ़ है, वो जिस्ट में एग्जिस्ट करता है, हां करता है, इसका मतलब वो भी पिथी है, ये भी पिथी इन नेचर है। क्या वो एडवाइस के लिए या विजडम के लिए या ट्रूजनल ट्रूथ के लिए इस्तेमाल होता है? हां होता है। क्या ये होता है? हां ये भी होता है, हां ये भी होता है। बट इसको जब आप यूज करते हैं तब ये अपने आप में सेलेक्टिवली इंडिविजुअली स्टैंड नहीं कर सकता। क्या कहने का मतलब हुआ? कहने का मतलब यह है आपको ईडियम को किसी सेंटेंस का पार्ट बनाना होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो ईडियम्स हैं ये फ्रेज है, ये फ्रेज हो सकता है। सभी फ्रेजेस ईडियम नहीं हो सकते, लेकिन ईडियम फ्रेज है। इसीलिए उसको एक सेंटेंस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है जिसका वो पार्ट बनता है। पर क्या प्रोवर्ब उसको सेंटेंस की जरूरत पड़ती है? नहीं, वो अपने आप में ही पूर्ण है। कई बार तो उसको कॉन्टेक्स्ट की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने सिंपली ये बोल दिया एन अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, कॉन्टेक्स्ट आपको पता है किस बारे में बात हो रही है, किस संदर्भ में बात हो रही है, आपको नहीं पता है, इट इज फाइन। बट ईडियम में नहीं, ईडियम में तो सेंटेंस की जरूरत है। ईडियम में आगे पीछे कुछ लगाना होगा, कोई सब्जेक्ट लगाना होगा। क्यों? क्योंकि ये फ्रेज है, सेंटेंस का एक पार्ट है जो अपने आप में कंप्लीट नहीं है। एक सेंस तो देता है पर कंप्लीट सेंस नहीं देता। एंड देयरफॉर वी मे see that it is used as a phrase in the sentence and is incomplete. It may or may not be metaphorical. It may be metaphorical, it may not be metaphorical. Let us take an example. And the example is backed up. Backed up. Take another example. And another example is hand and gloves. Hand and gloves. So if I say hand and gloves, although you know maybe knowing the meaning of hand and gloves, but still you have to use that phrase hand and gloves into a sentence so as to clearly make the distinct meaning of it. Otherwise you know hand and gloves, all right, they are hand and gloves. That means उनकी आपस में मिली भगत है। ये जो कुछ भी हुआ है इट इज बिकॉज दे आर हैंड इन ग्लव्स। बट अगर हम खाली आपसे ये कहें हैंड इन ग्लव्स, आप नहीं समझ पाएंगे। और इसीलिए एक सेंटेंस की जरूरत होती है। और जैसे आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये पहले से किसी कॉन्टेक्स्ट के लिए चलता चला आ रहा होगा। कॉन्टेक्स्ट तो प्रोवर्ब में भी हो सकता है, पर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी अगर आपने बात कह दी तो वो अपने में कंप्लीट है, उसको सेंटेंस की जरूरत नहीं है। पर यहां उसको सेंटेंस की जरूरत है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और इसीलिए हमने जब दूसरा एग्जाम्पल लिया बैक्ड अप, ये कैसे फ्रेज हो गए? इसके अंदर आप देखिए एक वर्ब है बैक्ड, और उसके आगे हमने एक प्रीपोजिशन लगाया है। जैसे कई बार प्रीपोजिशन यहां पे क्या लगा हुआ है? अप। कई बार क्या लगा होता है? ओवर, अंडर, अबाउट, राइट। यहां पर क्या लगा है? बैक्ड अप। तो किसी को बैकअप करना, आई वॉज बैक्ड अप बाय माई सीनियर्स। क्या मतलब हुआ? मेरे सीनियर ने मुझे सपोर्ट किया था। बैक्ड अप, टू बैकअप, टू बैकअप, टू बैकअप समवन। इसका मतलब किसी को प्रमोट करना, किसी को सहारा देना। बैकअप।
और इस तरह से अगर हम मैं खाली कहूं कि बैकअप, आप नहीं समझ पाओगे बैकअप। जब मैं कहूं कि डू यू हैव अ बैकअप, अब आप समझोगे हमसे ये पूछा जा रहा है कि मेरे पास क्या कोई पीछे सपोर्ट है, कोई सहारा है, कोई ऐसा है जो मेरे साथ खड़ा है और मेरी खराब स्थिति में हमें आगे ले जाएगा। दैट इज बैकअप। पर क्या ये वैसा ही साउंड कर रहा है जैसा कि एक प्रोवर्ब साउंड करता है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, क्या मतलब हुआ? रोम एक दिन में नहीं बना। तो मतलब क्या हुआ? वो तो हमने उसका ट्रांसलेशन कर दिया, लिटरल ट्रांसलेशन कर दिया। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कड़ी मेहनत, बहुत दिन की मेहनत, बहुत पेशेंस के साथ, लगन के साथ, विद पेशेंस एंड परसिवरेंस, आपको PERSEVERANCE, परसिवरेंस मतलब लगन के साथ लगे रहना किसी चीज के लिए, तब जाके कुछ खड़ा हो रहा है, कुछ सार्थक हो रहा है। और उसी के लिए इतनी सारी बातों को कहने के लिए एक बात निकल के आई कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। आफ्टर सो मच ऑफ डिस्कशन on the topic proverbs and idiom, I hope we all must have understood the basics of these and the differences between the two. क्या इसका मूल है और दोनों में क्या भिन्नता है, और इसको समझाने के लिए हमने जिस पुस्तक का यूज किया, दैट इज गुड न्यूज बाइबल, today's English version. See you again in the next video. Till then, thank you. Wish you a very happy Christmas. I wish everybody success, health, and again, I wish we all get some wisdom out of some good books like this one. Subscribe to the channel if you find it useful, if you find it innovative, if you find that you enjoyed listening to me and to some important and probably a wise subject. See you again. Thank you. Bye-bye.